Good evening, sir. Good evening. Hello. Hello. Hello, yes, so we can hear you. Hello. Sir, you are audible. Sir, can I start the class? Yes. Are Yes, students listening to me? Hello. there are सर 18 क्या participants, sir. स्टूडेंट सुन पा रहे हैं मुझे? Hello. Yes, sir, we can. सर क्लास स्टार्ट करें? हाँ जी सर. जी, sir. चलो ठीक है. हेलो. Sir, हाँ सर, टुडे the topic is the company law, appointment and qualification of director. First of all, sir, मैं बताना चाहूँगा, myself is Sanjeev Dutta, practicing advocate with the Delhi High Court and subordinate courts. I am also the member of the Institute of Cost Accountant since 2010. तो सर आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हम करने वाले हैं डेट इज द कंपनी लॉ, और कंपनी लॉ में जो हम स्टार्ट करेंगे डेट इज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, चैप्टर 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 and companies appointment and qualification of director rule 2014. सर इसके जो असाइनमेंट हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिएगा. मैं उस ग्रुप में जितने भी आपके असाइनमेंट्स हैं सारे असाइनमेंट उसमें आपको मेल कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा. और आपकी जो भी क्वारीज हैं आप उस ग्रुप में मुझे क्वारीज सेंड कर दीजिएगा. टाइम टू टाइम मैं आपकी क्वारीज का आंसर भी दे दूंगा, क्योंकि यहाँ से मैंने स्टूडेंट को म्यूट किया हुआ है, क्योंकि म्यूट नहीं करेंगे तो फिर क्लास में थोड़ा सा दिक्कत आएगी. इसलिए जो भी आपकी क्वारीज हैं आप मुझे एट द एंड ऑफ द क्लास या तो यहीं बता दीजिएगा या नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा या व्हाट्सएप के थ्रू मुझे बता दीजिएगा. सर, द फर्स्ट एंड द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड मैनेजर पर्संस ऑफ द कंपनी. देखिए सर, कंपनी लॉ में सबसे फर्स्ट एंड द मेन इंपॉर्टेंट जो बेसिक है वो हम इंटरमीडिएट में क्लियर कर चुके हैं. जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज द सेपरेट लीगल एंटिटी, मींस कंपनी एंड ओनर ऑफ द कंपनी, these Please are talk two in different entities. Hello. talk in Sir, English. मुझे सुन पा. Hello. Please talk in Sir, are English. you listening? Sir, everyone is not answerable in English, sir. English.
हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। Your voice is not audible, sir. Sir, my voice is clear. Yes, now आ रही है सर आवाज? स्टार्ट करें सर? कैन वी स्टार्ट? चले सर, we start with the who is the director, and according to section 234 of the Companies Act 2013, a director means a person who is appointed by the board of directors to work as a director of the company. Now, the be appointed as a director of the company, whether it is a body corporate, whether it is a company, any other entity, who can be appointed as a director of a company. सर, डायरेक्टर की पोस्ट के लिए खाली इंडिविजुअल ही एलिजिबल है। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट्स, कोई भी पार्टनरशिप फर्म, कोई भी एंटिटी अदर देन इंडिविजुअल इज नॉट एलिजिबल टू अपॉइंट एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। द क्वेश्चन इज, बॉडी कॉर्पोरेट इज एंटाइटल्ड टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। अब अगर सर मान लीजिए किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अगर मैं कहता हूं कि सर हम किसी कंपनी डायरेक्टर अपॉइंट कर दें, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? वेदर इट इज पॉसिबल? नो, ओनली इंडिविजुअल पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। नो बॉडी कॉर्पोरेट कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन इज whether the body corporate can be appointed as the director of the company. The answer is no, only the individual can be appointed as the director. None of the body corporate or any other entity except individual is entitled to appoint as director. Next very important that is the director identification number, that is known as the DIN. Basically, director identification number, it is referred to the identity of the director who can be eligible or who is already appointed or who is supposed to be appointed as a director of the company. Previously, there is no such condition to obtain the director identification number, but after the enactment of this act, the DIN, the director identification number, is necessary for all the individual before they can appoint as director of the company. First, Kataji, what is the basic meaning of director identification number? Director identification number basically refers to the, it is identity of the individual who is going to appoint in the company as a director. It means अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी के अंदर डायरेक्टर अपॉइंट किया जाना है, तो उसके लिए उसके पास डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर का होना जरूरी है। अब सर, जब 2014 में जब ये एक्ट इंप्लीमेंट हुआ, इन द बिगिनिंग the person who is already appointed as a director, they have not any director identification number. Therefore, the condition is that you have to obtain the director identification number within a specific time period. Now, today, the scenario is changed because there is a lapse of near about 6 years after the implementation of the company's law. Now, the condition is, if you want to appoint any individual as a board of director, in the board of director as a director,
the basic condition is director identification number. Without director identification number, you are not eligible to appoint as a director in a company. First is section 152, subsection 3. It states no company shall appoint or reappoint any individual as director of a company unless he has allotted a director identification number under section 154. It means anybody who wish to appoint as a director of the company, the first basic condition, firstly, he has to obtain for director identification number. After the allotment of director identification number, he is eligible for appointment as a director. Application of director identification number. Kehta sir, how can you apply for director identification number? It is given under the Rule 9 of the company's appointment of director, Rule 2014. There is a prescribed form. There is a prescribed fee for the appointment or for the obtaining the director identification number. By filling that particular form, you are eligible to obtain the director identification number. Application for DIN. The application form is DIN 3. Director identification number 3, Rule 9 of the company's appointment of director, Rule 2014. It means we have to fill a specific form. Allotment of DIN that is provided, that is given under section 154 of the Companies Act. Whenever we apply for director identification number, after receiving the application, central government allot DIN within 13 days of receiving the application. The central government shall within 1 month from the receipt of application under section 150 allot a director identification number to the applicant in prescribed manner. It means allotment that is given under section 154. Next, prohibition to obtain more than one DIN. Now the question is whether you can apply for more than one DIN, director identification number. The answer is no. Since you apply for one director identification number and the same is allotted in your name, no, you are not eligible for obtaining another director identification number. Therefore, only a director can obtain a single director identification number. Next, that is a punishment. Prohibition. I just told you, you can obtain only one director identification number. And what is the punishment? What is the penalty? And penalty punishment, this referred to the contravention of section 152. That is the appointment of director without DIN, section 155 and section 156. अब सर अगर आप इनमें से किसी भी सेक्शन का उल्लंघन करते हैं, वायलेशन करते हैं, the prohibition penalty is 50,000 and 500 rupees per day of continuing default. Basically इसका मतलब है कि सर अगर मान लीजिए अगर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर हमने डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन के बिना अगर मैं डायरेक्टरशिप के लिए अप्लाई करता हूं, ऐसे तो बेसिकली आपके लिए DIN का होना इट इज अ नेसेसरी, इट शुड बी अ नेसेसरी कंडीशन. अब अगर मान लीजिए आपने सेक्शन का कंट्रावेंशन किया, then the total penalty that is equal to 50,000 rupees and 500 rupees per day for the period the violation is continuing. So जब तक आपका violation continue रहेगा 500 रुपए per day आपको penalty pay करना पड़ेगा. Next, that is the company to inform DIN to ROC and information to the company. अब सर यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस हैं कि जब भी मैं DIN के लिए अप्लाई करता हूँ, किसी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर DIN के लिए अप्लाई करता है, तो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अल्टीमेटली वो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट होने के बाद इसकी इंफॉर्मेशन वो कंपनी को प्रोवाइड करेगा. And further, it is also the responsibility of the company
to provide the information to ROC. The condition is section 156, information to the company. Within 1 month from the receipt of DIN from the central government, the director shall intimate his DIN to all the companies in which he is a director. If I am a director in, suppose if I am a director in 4 or 5 companies, and if I apply for the DIN, then ultimately it is my responsibility whenever No audio. listening to me. Hello, Yes, sir. Yes, sir. sir, my voice is clear. Are you listening to me? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, It's sir. clear. Sir, Not इसमें clear, sir, थोड़ा it is सा breaking. बच्चों के we are receiving comment from 1 or 2 students that you must speak in English. सर लेक्चर है उसमें थोड़ा थोड़ा सा कई बार हिंदी भी आ जाएगी, प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि बच्चे काफी सारे ऐसे भी हैं जिनको पूरा का पूरा इंग्लिश में लेक्चर समझ में नहीं आता, तो दोनों के दोनों साइड के बच्चे कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि दोनों को समझ में आ जाए ज्यादा बेटर है. हाँ सर, फर्स्ट कंडीशन दैट इज इंफॉर्मेशन टू द कंपनी सेक्शन 156. आई जस्ट टोल्ड यू कि सर जब भी मैं डिन के लिए अप्लाई करता हूँ, and whenever central government allots DIN to me, first of all, it is my responsibility to inform all the companies in which I am already director, but that I am already obtaining the DIN. मुझे हर उस कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा डिन के बारे में, डिन का नंबर मुझे वहां पे मेंटेन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि सर दिस नंबर इज अलॉटेड टू मी. And further, section 157 says it is the responsibility of the company to inform the DIN of the director to the ROC, that is the registrar of company. Every company shall within 15 days of receipt of intimation under section 156. It means whenever any director inform about his DIN number to the company, no, it is the responsibility of the company to intimate the same information to ROC within 15 days of receiving the information from the director, concerned director. The section says the company must furnish the DIN number to ROC within 15 days. 15 दिन के अंदर ultimately वो आगे क्या करेंगे, inform करेंगे. And the rule number 12 of the company's appointment of director rule 2014, every individual who has allotted in shall, in the event of any change in this particular as stated in form DIR 3. अब सर यहाँ पे थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने भी आप लोगों को बताया था कि whenever we application number, we have to fill a form DIR 3. That is the basic form. And in this form, we have to provide all the information related with me. अगर सर मैं अगर डायरेक्टरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूं तो मुझे अपने सारे के सारे इंफॉर्मेशन DIR 3 में प्रोवाइड करनी पड़ेगी. It means that is a basic form. It means कि if I want to make some changes in the information, then whatever the information which is already contained in DIR 3, I have to inform all the concerned entity for such changes. The section says, Rule 12, every individual who has allotted in shall, in event of any change in this particular as stated in form DIR 3, intimate such change to central government within a period of 30 days of such change in form DIR 6, and the concerned individual shall also intimate the changes in this particular to the company or companies in which he is director within 15 days of such change. अब सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव द टू रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब मान लीजिएगा कि सर मैंने अपने DIR फॉर्म 3 में किसी टाइप का कोई भी चेंज करना है. अब मैंने कोई भी चेंज किया तो अल्टीमेटली इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंटीमेट द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज. मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा. इन द सेम मैनर, क्योंकि मैंने ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कंपनी को भी दे रखी है,
then I am also responsible toward the company, and therefore I have to inform the same information to all the companies in which I am a director. And in the same manner, the company further transfer the same information to the concerned ROCO within 15 days of the information received from the concerned director. अब सर कंसर्न डायरेक्टर अगर मान लीजिएगा कि मैंने अपने कंपनी को इन्फॉर्म किया, तो कंपनी आगे फर्दर 15 दिन के अंदर उन चेंजेस के बारे में आरओसी को इंटीमेट करेगी. And sir, next is that is the punishment. What is the meaning of the punishment, sir? If there is any changes made from my side and I am not fulfilling the condition of section 156, it means मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई लेट बताया या कंपनीज को मैंने अगर इसकी कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, then it is a breach of the Companies Act section 156, and whatever the punishment, that is the 25,000 along with the penalty of ₹100 per day in case of the continued default, subject to a maximum of ₹1 lakh, and officer in default. Now their punishment, for the punishment purpose, only two entities are responsible. Basically, first is the company itself and second is the person in charge. What does it mean, person in charge? Person in charge basically refer to the person who are responsible for day-to-day working of the companies. It means if there is any violation of section 156, the company is liable for a consolidated amount of 25,000 plus ₹100 per day till the violation is continued. And the person in charge or officer in charge who is responsible for continued operation of the company, that person are also responsible in the same manner. That is a 25,000 consolidated amount and ₹100 per day till the violation is continued. But the total amount cannot exceed ₹1 lakh. Sir, जो आपका total amount है वो आपका 1 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं होगा. सर, my audio is clear? क्या मुझे सुन रहे हैं आप सारे? हेलो. Yes, sir. चलिए. Sure, do it. Next, one more important, that is what didn't include. अब सर यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, उसमें ये कहा गया था कि खाली जो it is not only refer to the direct identification number. DIN also include the designated partnership identification number, that is the DPIN, which is issued to the member under LLP. अब सर LLP में अगर हम लोग मेंबर को कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर इश्यू करते हैं, that is known as a designated partner identification number, that is also the part of the DIN, that is also included in the definition of DIN. Now the question is, if there is no require of director identification number, अब सर क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि क्या डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर की कोई जरूरत नहीं है? And there are two main important circumstances when there is a no need of the DIN. सर, एक तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एग्जम्पशन प्रोवाइड कर देती है, और सेकंड सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपको द सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट एनी अदर काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन नंबर टू यू इन प्लेस ऑफ द DIN, then there is a no requirement of DIN, that is the director identification number. Whether this says central government has power to allot or prescribe any other identification number which shall be treated as DIN. Therefore, if any individual acquire or holds such identification number, then the requirement of DIN as per section 153 shall not apply, subject to fulfillment of any other condition which may be prescribed by the government. मैंने अभी आप लोगों को बताया सर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आप लोगों को DIN के बदले में कोई और टाइप का आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर अलॉट करती है और आपको कोई और स्पेसिफिक कंडीशन फुलफिल करने के लिए कहती है, then you can fulfill that particular condition. If the government allot direct any other identification number by fulfilling that particular condition, there is no need for you to mention your director identification number. It means the power
is only with the central government. Central government के पास power है, but the main important central government आपको इसके लिए DIN के अलावा कोई ना कोई identification number identification number issue करेगा. DIN under Companies Act 1956. अब सर जब DIN आपका implement हुआ तो सर Companies Act 1956 आपका ऑपरेटेड था. अब वहां पे भी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट किया गया. 2013 के एक्ट के अंदर भी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट किया गया. तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि वेदर देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन is not any difference because we have mentioned Companies Act 2013 or any other Companies Act operated before 2013. Therefore, there is no basic difference between the director identification number issue under Companies Act 1956 and the director identification number issue under Companies Act 2013. So there are two questions exam में आया. मैं questions repeat कर देता हूँ. Can a body corporate become a director of a company? Body corporate, that is not an individual entity. Therefore, body corporate is not eligible to be appointed as a director in a company. And second is, what do you understand by the director identification number and the procedure? मैंने भी आप लोगों को बताया कि सर DIN क्या है and what is the process, that is also explained. Now the first question, what are the duties of the director? What are the duties? What are the legal position of directors in a company? First is the duties of the director. अब सर डायरेक्टर की जो ड्यूटीज हैं, that may be implied, that may be written, or that may be from the behavior of the director. सर इसमें कोई आपका स्पेसिफिक ड्यूटीज नहीं है. कुछ ड्यूटीज ऐसी हैं जो हम लोगों को प्रिस्क्राइब है, and there are some duty which director has to fulfill at their own. There is no such prescription. The first is the director duty as per the article of the company. Basically, sir, the article, it is a document which prescribe the internal governing of the company. कि sir company कैसे चलेगी, company को हम लोग कैसे चलाएंगे. The first is the whatever the conditions to run the company, that all conditions are mentioned under the article. अब वो सारी की सारी कंडीशन क्या है, आर्टिकल में मेंशन की जाती है कि सर these are the conditions. अब अगर मान लीजिए आर्टिकल डायरेक्टर के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर टू ऑब्जर्व द ड्यूटी एज प्रिस्क्राइब बाय द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी. हियर अब कई बार दिक्कत इसमें आती है कि बच्चा ये लिख के आ जाता है कि सर duty prescribed by the article as well as the memorandum. So memorandum, that is a different document. Memorandum that create the relation between the company and the third party, whereas the article, that is the document which create the condition on which the company is going to run. So that is the most important कि sir article prescribe the duty, memorandum में ऐसा power given नहीं है. Next, director duty as per the good faith. So director has also duty as per the good faith. It means if I am a director of a company, it is my responsibility to work for the benefit of the company, but as not against the company. Sir, अगर मुझे लगता है कि सर कोई transactions company के लिए better है, ठीक है. अगर वो company के लिए gainful है, then it is my duty to perform. But at the same time, अगर मुझे लगता है कि सर ये जो transactions है, it is not good for the company, it may be possible that the company may occur a loss with this transaction, then it is my responsibility not to enter in that transaction. Therefore, acting the director in a good faith, that is totally a implied condition. Sir, ये specified नहीं होती है, ये implied है, it means माने जाने वाले. Next, director, it is the duty of director to adopt reasonable care, skill and delegations. अब सर देखिए जब भी आप कंपनी के लिए कोई काम करेंगे, basically it is responsibility of every director to do tasks for the best of the company. Therefore, it is the responsibility of the every director to adopt reasonable care, skill and diligence. सर अब रीजनेबल केयर स्किल डेलीगेंस बेसिकली केस टू केस डिसाइड होता है. इसमें थ्योरेटिकल है, अगर आप रियल लाइफ के अंदर आएंगे
अब मैं मार्केट में अगर कोई चीज, अगर मेरे को कोई लैंड परचेज करना है, द लैंड इज अवेलेबल विद द गवर्नमेंट एट 10,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड, एंड एट द सेम टाइम मैंने उसको मार्केट से 15,000 में परचेज कर लिया, तो इसका मतलब है कि मैंने प्रॉपर स्किल को अडॉप्ट नहीं किया. इन दिस सिचुएशन आई विल बी रिस्पॉन्सिबल इफ देयर इज एनी लॉस अकर टू द कंपनी. Therefore, acting in good faith and for the benefit of the company, basically, it is most important condition for the director. And next, not to assign his office at any such assignment of office, not to assign his office. So, company or board of director appoint me as a director. No, I have not any power that I can appoint any other person in my place as a director. अब अगर मान लीजिए मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डायरेक्टर अपॉइंट किया है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मेरे पास पावर नहीं है कि मैं किसी और व्यक्ति को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकूं, बिकॉज ये it is referred to excluding my power. I have not a such power to appoint any person. Next, no conflict interest in the company interest as well as your own interest. That is the conflict of interest. अब सर कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि एक ट्रांजेक्शन में मेरा खुद का डायरेक्टर का भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, कंपनी का भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है. इन दिस सिचुएशन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर टू गिव प्रायोरिटी टू द कंपनी इंटरेस्ट ओवर योर ओन इंडिविजुअल इंटरेस्ट. नेक्स्ट, नॉट टू achieve gain undue advantage either to himself or for his family or relative at the cost of the company. So basic the condition is, if there is any undue advantage occur to me or my family member or any other of my relative or friend, and that is only due to my directorship, then it is my responsibility that this person should not get any unfair advantage due to my post. अब सर अगर मान लीजिए सर मेरी पोस्ट के कारण अगर मेरे किसी रिलेटिव, मेरे किसी फ्रेंड, मेरे फैमिली मेंबर को अगर कंपनी से कोई गेन होता है, तो अल्टीमेटली ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस गेन को कंपनी को रिटर्न करे. अगर कोई गेन है तो, और वो गेन अगर अनड्यू बेनिफिट, अनड्यू इन्फ्लुएंस में अगर रिसीव किया गया. हाँ, अगर मान लीजिएगा कोई ट्रांजेक्शन है, लीगल ट्रांजेक्शन है, जिसमें अब मेरा कोई फैमिली मेंबर है, वो इन्वॉल्व है, वो अपने एफर्ट से अगर कोई ट्रांजेक्शन करता है, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, उसमें किसी टाइप का कोई भी इलीगैलिटी नहीं है, देन आई हैव नो पावर टू रिफंड दैट पर्टिकुलर मनी टू द कंपनी. इट कैन ओनली पॉसिबल इफ दैट गेन इज अर्न ड्यू टू अनड्यू एडवांटेज. The next topic is legal position of director. Theoretical sir, notes में आपको दे दूंगा, इसको आप खुद read कर लीजिएगा. That is not so important. The next main important topic, that is the maximum and minimum number of director that is given under section 149(1) and 149(2) of the Companies Act. Okay, sir, what is the minimum number of director? Basically, we have the three type of company. First is the private company, second is the public company, and last one is the one-person company. First is the private company. So the minimum number of director, that is the 2 director. It means in every private company there should be minimum 2 directors exist at every time. In the case of the public company के अंदर कम से कम 3 डायरेक्टर का होना जरूरी है, and one-person company there must be minimum 1 director. And next is the maximum number of director. अब सर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किसी भी कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर के मैक्सिमम नंबर क्या हो सकते हैं? द मैक्सिमम लिमिट दैट इज 15. इट मींस a company, a maximum 15 person can be appointed as a director. अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर क्या 15 से ज्यादा डायरेक्टर हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अब so the answer is a company can appoint more than 15% as a director by passing the special resolution. सर 15 व्यक्ति अपॉइंट करने के लिए आपको किसी भी रेजोल्यूशन को पास नहीं करना.
आपको कोई भी फॉर्मेलिटी पास नहीं करनी, आपके पास पावर है, यू कैन अपॉइंट द 15% एज ए डायरेक्टर। लेकिन सर अगर आप 15 से ज्यादा व्यक्ति अपॉइंट करना चाहते हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद योर कंपनी इज एलिजिबल टू अपॉइंट more than 15% as a director of a company. अब सर क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज द एग्जम्पशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा कि सर ये कंपनीज हैं और ये कंपनीज 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती हैं, तो उसमें दो चीजें हैं, या तो ऑर्डिनरी कंपनीज है और या एग्जम्पशन में आ जाएगा। अगर एग्जम्पशन के अंदर आ जाएगा देन व्हाट आर द एग्जम्पशन? फर्स्ट इज द ए गवर्नमेंट कंपनी। सर जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी 15 से ज्यादा व्यक्ति एज ए डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं विदाउट पासिंग एनी स्पेशल रेजोल्यूशन। इट मींस अगर मैं किसी गवर्नमेंट कंपनी की बात करूं तो उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ऑर्डिनरी कंपनी है, और उसमें मुझे एक 16वां व्यक्ति डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो उसके लिए कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब सर इसमें मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं कि जिनको ये नहीं पता होगा कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेजोल्यूशन। देखिए सर, रेजोल्यूशन बेसिकली इट इज ए काइंड ऑफ कंसेंट। अब जब हम लोग कंपनी में कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हम कंसेंट लेते हैं, दैट इज नोन एज द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में जितने भी प्रेजेंट शेयर होल्डर हैं उनमें मेजोरिटी का होना जरूरी है, और स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर हमारी 3/4 मेजोरिटी का होना जरूरी है। तो अगर मान लीजिए मैं 15 से ज्यादा व्यक्ति, इफ द कंपनी डिसाइड टू adopt more than 15% as a director, first of all company has to pass a special resolution. Special resolution pass करने के बाद we are eligible to appoint more than 15% as a director. Second, in case of the Section 8 company, that is the not for profitable company. If the company is NPO, that is the aim of the company is not to earn the profit, then there is no need to pass any special resolution. We can easily adopt or appoint more than 15% as a board of director. अब सर क्वेश्चन क्या आएगा? अब क्वेश्चन ये आएगा कि आपको बताया जाएगा कि सर ABC कंपनी लिमिटेड, ABC कंपनी लिमिटेड neither it is a government company, neither it is a Section 8, that is a not for profitable company. Therefore, it is not come under the category of the exception. In this situation, whenever you are going to appoint more than 15% as a director, the passing of special resolution, that is the most important criteria. Our next Hindustan Zinc Limited, a government company under Section 245 of the Companies Act. अब सर इसलिए एक्सेप्शंस के अंदर आप लोगों को कंपनी बता देगी भैया एक कंपनी है जो गवर्नमेंट कंपनी है, अब ये अगर अपने यहाँ पे 15 से ज्यादा व्यक्ति एज ए डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है, then this company come under the exception, then this exception is the condition for special resolution, it is not applicable for this company. तो सर इस कंपनी के लिए मींस जो भी गवर्नमेंट कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनीज है, इनको अगर 15 से ज्यादा व्यक्ति अपॉइंट करने हैं तो उस सिचुएशन में इनको कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी एक्सेप्शंस में फॉल नहीं करती तो स्पेशल रेजोल्यूशन की कंडीशन इट इज नेसेसरी फॉर ऑल द कंपनीज एक्सेप्ट दीज टू कंपनीज। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज देयर वन केस मेट, मैं केस है, मैं आपको केस पढ़ के बता देता हूं। The article of Association of Rajasthan Toy Private Limited provide that the maximum number of directors in a company shall be 10. Presently, the company is having 8 directors. The board of directors of the said company desire to increase the number of directors to 16. Advise under which provision of the Companies Act the board of directors can do so. Sir, मैंने आपको basically अभी बताया कि आपका कोई भी कंपनी है, अगर मान लीजिएगा कि सर ये कंपनी अगर एक्सेप्शंस में फॉल नहीं करती,
तो उस केस में अगर आप लोगों को 15 तक डायरेक्टर रखने हैं, 15 डायरेक्टर कैन बी अलाउ अंडर द कंपनी एक्ट 2013। तो मुझे अगर 15 डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं तो 15 डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए मुझे कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी, लेकिन जहां पर मैं 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहता हूं, मुझे उसके लिए कंपनी की एजीएम में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद ही आई एम एलिजिबल टू अपॉइंट मोर देन 15% एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। तो सर व्हाट इज द प्रोसीजर? कहता है कि सर क्या प्रोसेस बता रखा है। अब वो कहता है कि सर बेसिकली द आर्टिकल स्टेट, आर्टिकल कहता है कि सर आपके यहाँ पे 10 डायरेक्टर है, अभी हम लोगों ने अपॉइंट किया 8, और हम चाहते हैं कि 16 व्यक्ति अपॉइंट करें। अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द आर्टिकल मैक्सिमाइज द लिमिट अप टू 10, it is not possible for the company to appoint more than 16% as a director, even passing the special resolution। तो सर उसके लिए सबसे पहले कंडीशन है कि आपको आर्टिकल में अल्टरेशन करवाना पड़ेगा। आर्टिकल को चेंज करवाने के बाद आप लोग स्पेसिफिक स्पेशल रेजोल्यूशन पास आउट करवाएंगे। द फर्स्ट कंडीशन that is alter its article of association under section 14। सर पहले तो आप लोग आर्टिकल्स में अमेंडमेंट कीजिए, और आर्टिकल में अमेंडमेंट करने के बाद आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना है, क्योंकि आर्टिकल में लिमिट प्रिस्क्राइब है। आपने आर्टिकल में लिमिट 10 डाल रखी है, और आपके यहाँ पे 8 डायरेक्टर है, और आप चाहते हैं कि 16 डायरेक्टर हो जाए, तो सर स्पेशल रेजोल्यूशन बाद में होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल अल्टर होने के बाद we can increase the number of director from 8 to 16, provided we have to fulfill the specific resolution condition। special resolution आपका fulfill होगा, complete होगा, then you are eligible to increase the number of the director। Next, that is woman director, that is rule 3 of companies appointment of director rule 2014। Now first question is, for which company it is obligatory to have a woman director? First is the every listed company। Sir, hello, सर अपना माइक लो बंद कर दीजिए, डिस्टर्बेंस आ रही है। सर मेरी आवाज क्लियर है आप सबको? Yes, sir. You're audible. सर इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी लिस्टेड कंपनी। सर कोई भी कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, then it is necessary for that company to have a one woman director। उसके लिए एक woman director का होना जरूरी है। Next, every public company limited having paid up share capital of 100 crore rupee or more, or turnover of 300 rupee or more। सर दो क्राइटेरिया दे रखे। फर्स्ट क्राइटेरिया, इफ यू आर अ लिस्टेड कंपनी, अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो आपकी पेड अप कैपिटल क्या है, आपकी टर्नओवर क्या है, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिएगा कि आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं है, देन हमें देखना पड़ेगा कि आपकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या आपकी टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा है। देन इन दैट सिचुएशन, अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी होती है, then it is the requirement of the company to have a woman director in its board। Newly incorporated company, कहते हैं कि सर इफ द कंपनी इज अ न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी, अब कंपनी सर अगर मान लीजिए आज ही हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट करी है, तो ऐसा पॉसिबल है कि आज ही हो सकता है कि आज ही हम लोग वुमेन डायरेक्टर लें। अब अगर मैंने कोई आज कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, वो कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी है, तो अल्टीमेटली कंडीशन है कि वुमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है। लेकिन आज ही जरूरी नहीं है कि मुझे आज वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। Therefore, in the case of the newly incorporated company, the woman director can be appointed within a period of 6 months from the date of incorporation। तो सर अगर कोई भी नई कंपनी इनकॉर्पोरेट है और वो कंपनी इन दोनों में से किसी भी कंडीशन को फुलफिल करती है, देन आपको इनकॉर्पोरेशन के 6 महीने के अंदर अंदर किसी ना किसी लेडी डायरेक्टर को, वुमेन डायरेक्टर को बोर्ड में लाना पड़ेगा।
लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको आज कल या हफ्ते 10 दिन के अंदर वुमेन डायरेक्टर लाना पड़े. It is the maximum limit is 6 months. Within 6 months, 6 months that is the maximum. Next is the vacancy of women director. अब सर अगर मान लीजिएगा कोई भी वुमेन डायरेक्टर हमने अपॉइंट किया, या मान लीजिए किसी वुमेन डायरेक्टर की कोई वैकेंसी पैदा हो जाती है किसी भी रीजन के कारण, then what is the provision? Any vacancy of a woman director shall be filled up by the board at the earlier but not later than immediate next board meeting 3 months from the date of such vacancy, whichever is the later. अब सर अगर मान लीजिए कोई भी वैकेंसी पैदा होती है, अब पहले हमारे पास प्रोविजन ये था कि सर अगर एक कंपनी के लिए कंडीशन पैदा हो गई कि भाई वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट किया जाना जरूरी है, देन आपके पास 6 महीने का समय है. लेकिन अगर मान लीजिएगा कि वुमेन डायरेक्टर ऑलरेडी बोर्ड में है और वैकेंसी उसके बाद पैदा होती है, किसी ना किसी रीजन के कारण वुमेन डायरेक्टर अगर एग्जिस्ट कर जाता है, तो उस सिचुएशन में हमें कम से कम 3 महीने मिलेंगे ही मिलेंगे. अब वुमेन डायरेक्टर हम कहाँ पे अपॉइंट करेंगे? अल्टीमेटली जो कंपनी की एजीएम आएगी या कंपनी की आपकी मीटिंग, आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर कोई मीटिंग होगी, तो अल्टीमेटली उस डायरेक्टर मीटिंग में हम लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा. तो इस सिचुएशन में उन लोगों ने कहा कि इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग. अब सर जो कमिंग बोर्ड मीटिंग आने वाली है, अगर कमिंग बोर्ड मीटिंग 3 महीने से पहले फॉल करती है तो हमारे पास मैक्सिमम लिमिट है 3 महीने की. तो उस केस में आपको 3 महीने में डायरेक्टर अपॉइंट करना. लेकिन अगर मान लीजिएगा कि जो बोर्ड मीटिंग है वो 3 महीने के बाद फॉल करती है, तो उस केस में आपको 3 महीने से ज्यादा का समय मिल जाएगा. In that situation, you can appoint women director till the conclusion of that board meeting. तो सर आपके पास कंडीशन है, that is the 3 month. आपका मिनिमम पीरियड आपको मिलेगा ही मिलेगा 3 month और नेक्स्ट सक्सीडिंग बोर्ड मीटिंग whichever is the later. तो अगर कोई भी वुमेन डायरेक्टर वैकेंसीज आपके यहाँ पे अराइज होती है, तो ऐसी सिचुएशन में 3 महीने या कमिंग बोर्ड मीटिंग दोनों में से कौन सा भी लेटर स्टेज में आएगा, you are eligible to appoint, you are eligible to fulfill the seat of the woman director. So the question is, अब सीए में क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, सुन लीजिएगा. The board of director of MNP Limited appoint Mrs. Neha as a woman director in the board meeting held on 10 September 2014. अब सर 10 सितंबर को हम लोगों ने मिसेस नेहा को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एज अ वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट किया. सच द सेट अपॉइंटमेंट वाज मेड टू फिल द वैकेंसी ऑफ द वुमेन डायरेक्टर which had occurred as a result of resignation of Mrs. Sheila on 30th June 2014. अब एक आपका पहले का डायरेक्टर था 30 जून 2014 में वो रिटायर हुए, तो उनके जाने के बाद जून के बाद आया आपका जुलाई, जुलाई के बाद आया अगस्त, अगस्त के बाद आया सितंबर. तो आपने 2 महीने 10 दिन के बाद ही आप लोगों ने नया डायरेक्टर, नए वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया. Now the question arises whether such appointment is valid. क्या आप उसको अपॉइंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अब इसमें कहता है कि सर what will be your answer if the board meeting of the company was held on 8th November 2014? अब सर अगर मान लीजिएगा कि बोर्ड मीटिंग अगर आप लोगों की 8 नवंबर को है, कहता सर फर्स्ट प्रोविजन, the appointment of Mrs. Neha, since Mrs. Neha was appointed in the next board meeting after the vacancy arose, that is 10 September 2014, her appointment is valid. अब सर जो आपने पहला अपॉइंटमेंट किया था, फर्स्ट केस में अपॉइंटमेंट किया था, वो 10 सितंबर 2014 को हुआ था और अपॉइंटमेंट आपका जो बोर्ड मीटिंग थी, बोर्ड मीटिंग के बाद हुआ. तो सर अगर बोर्ड मीटिंग के बाद आपका अपॉइंटमेंट होता है तो अल्टीमेटली वो वैकेंसी वैलिड मानी जाएगी, वो अपॉइंटमेंट वैलिड माना जाएगा. लेकिन सर अगर मान लीजिएगा कि बोर्ड मीटिंग आपकी 8 नवंबर की है और आपने अपॉइंटमेंट किया 30 जून को, तो एट दैट सिचुएशन द अपॉइंटमेंट इज नॉट वैलिड, अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा. क्यों? क्योंकि उस केस में बोथ मीटिंग और 3 month whichever is the later,
तो सर 8 नवंबर 2014 दैट इज द प्रीसीडिंग, तो उस केस में सेकंड केस के अंदर दैट इज नॉट अ वैलिड अपॉइंटमेंट। एक बार दोबारा ध्यान से सुन लीजिए सर, किसी भी व्यक्ति को अगर मुझे अपॉइंट करना है, अगर मेरी मान लीजिए नोट द किसी भी व्यक्ति, इफ देयर इज एनी लेडी डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, और अगर वुमेन डायरेक्टर की कोई भी पोस्ट अगर मान लीजिएगा अराइज होती है, तो उस केस में मेरे पास कंडीशन है इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज द लेटर। तो सर जो मेरी प्रोसीडिंग जो इमीडिएट बोर्ड मीटिंग आने वाली है या 3 महीने का पीरियड, मेरे पास दोनों में से ऑप्शन है कि इनमें से जौन सा भी लेटर स्टेज में आएगा मैं उस डेट को अपॉइंटमेंट कर सकता हूं। मतलब ये नहीं कि अगर आप उससे पहले अपॉइंटमेंट करेंगे तो वो आपका वाइड माना जाएगा, मतलब इन दोनों में से जौन सी भी डेट बाद में फॉल करेगी यू आर एलिजिबल। लेकिन अगर मान लीजिएगा कि अगर मेरी बोर्ड मीटिंग बाद में फॉल करती है, 3 महीने का समय खत्म हो जाता है, बोर्ड मीटिंग मेरी बाद में फॉल करती है, तो अल्टीमेटली मुझे बोर्ड मीटिंग में ही डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। दैट इज द कंडीशन। नेक्स्ट इज द सर रेजिडेंट डायरेक्टर। अच्छा सर, ये जो नोट्स हैं ये कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली तैयार किए गए हैं, तो स्टडी मटेरियल में जो आपके सेक्शंस हैं वो आगे पीछे होंगे, तो आप सेक्शंस को नोट कर लीजिएगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइएगा, मुझे इंटीमेट कर दीजिएगा, मैं पूरे के पूरे रिटन नोट्स आप लोगों को व्हाट्सएप में शिफ्ट कर दूंगा। तो जब भी आपकी क्लास होगी तो नोट्स आपके पास ऑलरेडी पहले से अवेलेबल होंगे। देन वी कंटिन्यू विद द क्लास। नेक्स्ट इज द रेजिडेंट डायरेक्टर। Section 149, subsection 3, it is a mandatory condition. Every company shall have at least one director who has stayed in India for a total period of not less than 182 days or more in a preceding calendar year. Sir, resident director, आपको याद होगा आप इंटर में टेक्स्ट में पढ़ा था residential status. And in the residential status topic, I think as per my knowledge, section 6(1) and section 6(3) of the Income Tax Act state, who is a resident? First of all, we have to clear resident, the person that must be stay in India for minimum 182 days. ऐसा कुछ कंडीशन थी कि आपको कम से कम 182 दिन इंडिया में रहना है। अगर आप 182 डेज नहीं रहते, then minimum number of days plus 365 days in 4 year proceeding to previous year. तो यहाँ पे सर एक आपका मैंडेटरी कंडीशन है कि जो भी कंपनी है उस कंपनी में कम से कम एक डायरेक्टर आपका ऐसा होगा जो रेजिडेंट डायरेक्टर होगा। व्हाट डज इट मींस रेजिडेंट डायरेक्टर होगा? मींस कम से कम वो व्यक्ति इंडिया में उसका स्टे 182 डेज और मोर, मतलब कम से कम उसको इंडिया में 182 दिन का 182 डेज दैट पर्सन मस्ट इन इंडिया। और आपको 182 डेज की जो कैलकुलेशन है दैट इज एज पर इनकम टैक्स, उसको इनकम टैक्स एक्ट में करना है। उसमें एज वी नो कि कोई कंटिन्यू स्टे की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका इंटरवल्स में आप इंडिया में रह सकते हैं। आप जिस दिन इंडिया में आएंगे आपका डे ऑफ अराइवल काउंट किया जाएगा, जिस दिन आप जाएंगे उसमें डे ऑफ डिपार्चर काउंट किया जाएगा। तो ये सारे के सारे जो भी कंडीशंस हैं दैट शुड बी as per the Income Tax Act. So the condition is 149(3), one, at least one director that should be in a company as a resident director. And next, the main important topic, that is the independent director. Sir, what is the meaning of director, independent director? Section 149. देखिए सर, बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दैट इज अ वास्ट टॉपिक। मींस डायरेक्टर जिसका कंपनी में किसी टाइप का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कंपनी में उसका कोई भी सैलरी नहीं है, उसका कोई भी कंपनसेशन कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कंपनी में उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कंपनी में उसकी कोई शेयर होल्डिंग नहीं है, कंपनी ने उसमें कोई लोन नहीं लिया। तो बेसिकली पहले क्या था, द कंडीशन इज कि we have director, we have the depend, we have the hello sir, आवाज क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी।
Independent Director, Section 149. The provision related to independent director that is contained in Section 149 of the Companies Act, and the concerned rule is Rule 4 and Rule 5 of Companies Appointment and Qualification of Director Rule 2014. Listed company. अब सर अगर मैं listed company की बात करता हूं, every listed company shall have at least 1/3 total number of director as independent director, and any fraction contained in such 1/3 shall be round off as 1. अब सर अगर मैं कहता हूं कि लिस्टेड कंपनी है और लिस्टेड कंपनी के अंदर अगर मेरे पास टोटल डायरेक्टर 9 है, then what should be the minimum number of independent director? Sir, the minimum number of independent directors should be 3. That is the 1/3 of the total number of director. लेकिन अगर मान लीजिएगा कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर मेरे पास 10 हैं, then what is the condition? अब 10 में से अगर 1/3 में लेके चलूंगा तो वैल्यू फ्रैक्शंस में आएगी, दैट इज 3.3. इन दैट सिचुएशन 3.3 इट शुड बी कन्वर्ट इनटू 4. तो जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, दैट इज द 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर. लेकिन अगर सर 1/3 की कैलकुलेशन में ये फ्रैक्शंस में अगर आते हैं, then fraction it should be converted into the 1. तो ये फ्रैक्शन आपका एक में कन्वर्ट हो जाएगा. अब फ्रैक्शन वैल्यू आपकी 0.001 है, then it should be treated as the 1 director. कहता है कि सर प्रिस्क्राइब क्लासेस ऑफ कंपनी. अब सर अगर मान लीजिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रिस्क्राइब क्लासेस ऑफ कंपनी? फर्स्ट इज इन द केस ऑफ द लिस्टेड कंपनी. अगर मैंने पहले जो आपको बताया 1/3 दैट इज फॉर द लिस्टेड कंपनी. सर आपको कुछ कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है. लिस्टेड कंपनी की टर्नओवर क्या है, लिस्टेड कंपनी का प्रॉफिट कितना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिल किया नहीं किया, इट इज नॉट ए मैटर ऑफ डिस्कशन. द मेन कैरेक्टर, सिंस इट इज अ लिस्टेड कंपनी, देयरफॉर द मिनिमम डायरेक्टर शुड बी 1/3 as per the section 149. But for the other company, the necessary criteria, what should be necessary criteria? First, the following classes of companies shall have at least 2 director as independent director. अब सर ये क्लास ऑफ कंपनी दे रखी है, इनमें कम से कम 2 व्यक्ति, 2 डायरेक्टर आपके पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी है. फर्स्ट इज द पब्लिक कंपनी having a paid up share capital of 100 crore rupee or more. सर कोई भी पब्लिक कंपनी है अगर उसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है. सेकंड, पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर 100 करोड़ रुपए और मोर. सर अगर आपकी टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा की है. पब्लिक कंपनी विच हैव इन एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर एंड डिपॉजिट एक्सीडिंग 50 करोड़. तो सर आपके पास 3 कंडीशंस आपकी गिवन है. कोई भी कंडीशंस अगर आप लोगों की पूरी होती है, देन रिक्वायरमेंट ऑफ 2 मिनिमम डायरेक्टर इज मस्ट. फर्स्ट केस इज द, अगर मैं सबसे पहले बात करूं लिस्टेड कंपनी, कोई भी देयर इज ए नॉट ऑफ नो लिस्टेड कंपनी, therefore the total director, whatever the number of total director, 1/3 of such directors should be an independent director. But in case of the other public company, if the company is having the paid up capital 10 crore or rupee more, the turnover is 100 crore or rupee more, or if the outstanding loan, debenture, deposit is 50 crore or rupee more, if any one of the condition is fulfilled, then it is necessary for that particular company to have a minimum 2 director in its board as a independent director. Next is the higher number of independent director. So what is the meaning of the higher number of independent director? What does it means? सर ये कहना चाहता है कि सर होता है कि जो हमारी ऑडिट कमेटी है, अब ऑडिट कमेटी डिमांड करती है कि सर आपके लिए ज्यादा, आपको आपकी कंपनी में ज्यादा डायरेक्टर का होना जरूरी है. अब ऑडिट कमेटी कहती है सर
कंपनी की पेड अप कैपिटल इट इज मोर देन 10 करोड़ रुपी, हम लोग मान के चलते हैं कि सर आप लोगों के लिए कंपनी के ऑडिट कमेटी के हिसाब से इस कंपनी में 3 मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी है। अब मैं कहता हूं सर कंपनी लॉ तो कहता है कि भैया 10 करोड़ की टर्नओवर है, 10 करोड़ की पेड अप कैपिटल है, तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 2 होने चाहिए। आप कहते हैं कि सर ऑडिट कमेटी है तो 3 होने चाहिए, तो दैट इज एक्सेप्शन। द एक्सेप्शन इज if due to composition of audit committee higher number of independent director is required, then company shall appoint such higher number as independent director. It means sir अगर audit committee कहती है कि कम minimum कम means जो required limit है उससे कम आपके director होने चाहिए independent director, then the condition for minimum director 3 or 2 it is prevail. लेकिन अगर ऑडिट कमेटी कहती है कि सर हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस लिमिट से ज्यादा चाहिए, देन इट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शन, देन मैक्सिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज डिजायर और एज रिक्वायर्ड बाय द ऑडिट कमेटी द कंडीशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड। मतलब उस केस में अगर ऑडिट कमेटी ने कहा कि भैया हमारे को 2-3 से 3 आदमी डायरेक्टर चाहिए, लॉ कहता है कि 2 डायरेक्टर चाहिए, तो उस केस में आपको 3 रखने पड़ेंगे। लेकिन अगर लॉ कहता है कि लिस्टेड कंपनी है हमें कम से कम 3 चाहिए और ऑडिट कमेटी कहते हैं कि नहीं सर हमारे लिए 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को होना जरूरी है, तो उस केस में आपको मिनिमम 3 डायरेक्टर 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने यहाँ पे मेंटेन करना अनिवार्य है। कहते हैं कि सर filling of if there is any vacancy arises in case of independent director, the same provision सर अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर कोई भी वैकेंसीज पैदा होती है, then the vacancies it should be fill up in the next board meeting or within 3 months from the date of such vacancy whichever is the later। तो सर अभी जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो आप लोगों की नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है या वैकेंसीज के 3 महीने के अंदर अंदर इन दोनों में से जो भी डेट लेट होगी, लेटर स्टेज में आएगी, दैट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर अपॉइंटमेंट और फिलिंग द इंटरमीडिएट filling the vacancy arises due to vacations of independent director। Next is non-applicability। अब सर ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्लॉज है कहाँ पे अप्लाई नहीं होता। फर्स्ट कहता है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, फर्स्ट वर्ड इज द अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। व्हाट इट डज मीन? इट रेफर टू पब्लिक कंपनी की 3 कंडीशन दे रखी है। लिस्टेड कंपनी तो वैसे का वैसे ही उसके लिए कंडीशन है, उसके लिए तो कंफर्म है कि सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी है। तो उसने कहा कि सर अगर वो कंपनी अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का मतलब क्योंकि वो लिस्टेड नहीं है और तीनों में से किसी भी कंडीशन को पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा नहीं है, ये आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट दैट इज नॉट मोर देन 50 करोड़, तो उस केस में it is not necessary for your company to have a independent director। Next is any joint venture। So if there is a joint venture occur between the two or more companies or wholly owned subsidiary company, the one main important wholly owned subsidiary company। अब सर अगर मेरी कंपनी मैंने किसी कंपनी को अगर एक्वायर किया, that is a holding and subsidiary company relationship। If I acquire any company and that is a wholly owned subsidiary company, in this situation when the conditions are fulfilled by the main parent company or holding company, then it is not necessary for the subsidiary to also follow the same condition। सर अगर होल्डिंग पूरा कर रही है तो उस केस में आपको सब्सिडरी कंपनी को ये कंडीशन पूरा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए कोई भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर वो 3 कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती, ज्वाइंट वेंचर और wholly owned subsidiaries company, these are come under the category of the exception। It means this section is not applicable for this company। Or effect, where a company ceases to fulfill the prescribed criteria, where a company ceases to fulfill any of 3 conditions or 3
for 3 consecutive years, it shall not be required to accompany with provision of independent directors. Sir, it is the most important condition. That is ever to effect where company cease to fulfill prescribed criteria. अब सर मैंने आपको अभी बताया कि जो भी आप लोगों की पब्लिक कंपनी है उसमें से मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई. अब किसी भी कंपनी में ये कंडीशन अगर मान लीजिए 2 साल के लिए इनमें से कोई कंडीशन पूरी हो जाती, अब तीसरे साल में जाके in the third year none of any condition, none of the above stated condition is fulfilled. इसका मतलब है कि 3 साल तक लगातार कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई. इन दैट सिचुएशन उस कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंडीशंस फुलफिल करना अनिवार्य नहीं है. एक बार मेरे को फिर दोबारा कंफर्म कर लीजिएगा. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा. इट इज अ केस में अब कोई भी कंपनी है, अब वो कोई कंपनी अगर मान लीजिएगा फॉर लास्ट 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर मोर देन 3 ईयर ये कंडीशंस इनमें से कोई कंडीशंस पूरी करती आ रही, तो अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मेंटेन करना अनिवार्य है. 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेंटेन करना अनिवार्य है. अब मान लीजिएगा अगले 2 साल तक, अगले मैंने 3 साल पूरा का पूरा कंडीशन पूरा किया. अब नेक्स्ट ईयर अगर मान लीजिएगा कि मैं इन तीनों में से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करता, देन द कंडीशन इज कि 3 साल क्या बोलता है, फिर दोबारा देख लीजिएगा. वेयर ए कंपनी सीज टू फुलफिल एनी ऑफ 3 कंडीशन, सीज टू फुलफिल एनी ऑफ दिस 3 कंडीशन फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स. सर 3 साल लगातार अगर आप इनमें से किसी भी कंडीशन को पूरा नहीं करते, देन दिस कंडीशन इज नॉट affected for you. It means उस केस में आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है. नेक्स्ट इज दैट इज डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशंस. The provision of section 152 with respect of rotational and non-rotational director and retirement of director by rotation shall not apply to appointment of independent director. अब सर हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे डायरेक्टर, रोटेशनल डायरेक्टर एंड नॉन रोटेशनल डायरेक्टर. अब सर रोटेशनल डायरेक्टर होते हैं कि बेसिकली दीज आर नॉट द परमानेंट डायरेक्टर कि भैया हमारी कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनमें से 1/3 मिनिमम हर साल रिटायर होंगे और उसके बदले में दूसरे डायरेक्टर को हम लोग दोबारा से रीअपॉइंट करेंगे या उन्हीं रिटायर्ड डायरेक्टर को दोबारा से रीअपॉइंट किया जाएगा. इसका मतलब है कि कुछ डायरेक्टर ऐसे जिन पे ये प्रोविजन इंप्लीमेंट होता है, दैट डायरेक्टर्स आर नोन एज अ रोटेशनल डायरेक्टर्स. लेकिन कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं. इट मींस आप उनमें किसी टाइप का कोई चेंज ही नहीं कर सकते. अब अगर रिलायंस की बात की जाए तो अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी ये परमानेंट डायरेक्टर्स हैं, ये भाई परमानेंट डायरेक्टर्स हैं. ये वो डायरेक्टर्स हैं जिनमें आप कभी चेंज कर ही नहीं सकते. ये आपकी लाइफ टाइम डायरेक्टर्स कंपनी के एमडी हैं, होल टाइम डायरेक्टर्स हैं. लेकिन कुछ आपके डायरेक्टर ऐसे हैं जो रोटेशनल हैं. तो ये कॉन्सेप्ट जो रोटेशनल और जो नॉन रोटेशनल है, क्या वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पर इंप्लीमेंट होता है? द आंसर इज नो. मींस आपके जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो रिटायर बाय रोटेशन नहीं होंगे, उन पर रोटेशनल डायरेक्टर्स का प्रोविजंस इंप्लीमेंट नहीं होता. दैट द कंसर्न प्रोविजन इज सेक्शन 149 subsection 3. It is referred to the retire by rotation. The provision state, that is section 152 with respect to, sir, retire by rotation. This is the provision with respect to independent director. कि सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, क्या ये रोटेशन से रिटायर होंगे या नहीं होंगे? That is given under section 149 subsection 3. At the same time, जो रोटेशनल और नॉन रोटेशनल डायरेक्टर है, that provision is contained under section 152. So basically the answer is section 152 is not applicable in case of 149. What it means, जो रोटेशनल और नॉन रोटेशनल डायरेक्टर का प्रोविजन है, that is not applicable in case of independent director. The answer is
the provision of section 152 with respect of rotational and non-rotational director and retirement of director by rotation shall not apply to appointment of independent director. So sir, independent director retired by rotation 149 or rotational or non-rotational director 152, indirectly 152 is not applicable in case of 149 subsection 3. This one is the independent director. The next topic is that is the most important, appointment of first director. अब सर आप कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट करने वाले हैं और फर्स्ट डायरेक्टर हाउ वी कैन अपॉइंट द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. आप पहले कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर आप किस तरीके से अपॉइंट करेंगे? The first provision that is fall if the article contain the provision. अब सर डायरेक्टर कैसे अपॉइंट करना है? अल्टीमेटली इट इज द इंटरनल पार्ट, इंटरनल वर्किंग ऑफ द कंपनी. और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो भी हमारी इंटरनल वर्किंग है दैट कैन बी डिसाइडेड बाय द आर्टिकल्स. उसे कौन डिसाइड करेगा? आर्टिकल डिसाइड करते हैं. तो सर तो पहला क्वेश्चन है कि जो आपके फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं या तो उनके नाम आर्टिकल में मेंशन होंगे या उनको अपॉइंट करने का तरीका आर्टिकल में दिया जाएगा. तो सर अगर उनके नाम आर्टिकल में गिवन है, it means the person whose name is mentioned in the article of association as the first director, that person should be treated as the first director of the company. In the same manner, if the names are not given, but how to appoint the first director, if that provision is mentioned in the article, it means first director should be appointed as per such provision. Now, the section 152 subsection 1 state, if article of association contain provision with respect to first director, in such a case, the appointment is made as per the provision contained in the article. Sir, या दो चीजें हैं, या तो आर्टिकल में उनके नाम मेंशन है या आर्टिकल में आपका प्रोविजन गिवन है कि भैया आपने किस व्यक्ति को आपने फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट करनी है. अगर ऐसा वे आर्टिकल में पहले से ही दिया गया है, then in that situation first director should be appointed accordingly. The number of director and the name of the first director shall be determined in writing by the subscription of memorandum or majority of them, that is according to regulation 16 of the table F. अब सर मान लीजिएगा आर्टिकल में मेंशन नहीं है, ना उनके नाम मेंशन है, ना कोई वे मेंशन है कि भैया हम उनको फर्स्ट डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट करेंगे. इन दैट सिचुएशन द पर्सन हु आर सिग्नेटरी टू मेंबर्स. सिग्नेटरी का मतलब क्या होता है सर? वो व्यक्ति जिन्होंने मेमोरेंडम को साइन करके कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ शेयर परचेस करने के लिए प्रॉमिस किया है, दैट पर्सन आर नोन एज अ सिग्नेटरी. And in the absence of any two specific condition, all the signatory of memorandum are known as the first director of the company unless and until any announcement made by such director. अब सर अगर मान लीजिए मेरी कंपनी के मेरे पास किसी कंपनी का ऑफर आता है, अब कंपनी कहती है कि सर दत्ता साहब आप कंपनी में शेयर परचेस कर लीजिए, आप कंपनी के मेमोरेंडम को आर्टिकल को साइन कीजिए, और मैं उस कंपनी में आर्टिकल्स मेमोरेंडम को साइन करता हूं, आई कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द सिग्नेटरी. लेकिन अगर मैं उस कंपनी, मेरे को पता है कि भैया अगर आर्टिकल में फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करने का कोई उस फर्स्ट डायरेक्टर के नाम नहीं गिवन है और फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करने का कोई तरीका नहीं गिवन है, अब वो मेरे लिए दिक्कत पैदा करेगा कि अगर मैं कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, आई वुड बी ट्रीटेड एज द फर्स्ट डायरेक्टर. तो मैं पहले से ही कंपनी को इंटीमेट कर देता हूं कि सर सिंस देयर इज नो मेंशनिंग ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर इन योर आर्टिकल, सर आपके आर्टिकल में फर्स्ट डायरेक्टर के नाम मेंशन नहीं है, उनका वे मेंशन नहीं है, उनको अपॉइंट कैसे किया जाएगा मेंशन नहीं है. तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो भी सिग्नेटरी हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली डीम डायरेक्टर, डीम फर्स्ट डायरेक्टर माने जाएंगे. तो मैं उस पोस्ट के लिए आपको रिफ्यूज करता हूं
In that situation only I should not be treated as the first director. लेकिन मैक्सिमम केस में ऐसा नहीं होता, तो इसलिए दो कंडीशंस आपकी गिवन है, या तो नाम बता दीजिए या वे बता दीजिए, और अगर आप नाम नहीं बताते, वे नहीं बताते, in that situation जो भी डायरेक्टर्स हैं, all the provision is all the subscribe to memorandum who are individual shall be deemed to be the first director until the director are duly appointed. तो सर जो भी सिग्नेटरी है मेमोरेंडम के, दैट इज द इंडिविजुअल सिग्नेटरी, उन सबको ही कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर माना जाएगा अगर आर्टिकल में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन मेंशन नहीं है. नेक्स्ट कहता है सर, वन पर्सन कंपनी, an individual being member shall be deemed to be its first director until the director or directors are duly appointed by the member. अब सर वन पर्सन कंपनी के अंदर अगर आपने कोई डिसाइड नहीं किया, द पर्सन द इंडिविजुअल जो भी कंपनी का आपका मेंबर है, इंडिविजुअल मेंबर है, दैट पर्सन शुड बी ट्रीटेड एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट कहता है कि सर सेक्शन 152 to subsection to section 5, 152 subsection 2 to 5, that is general provision relating to appointment of directors. First is the manner of appointment of director. सर आप डायरेक्टर को किस तरीके से अपॉइंट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को भी बताया कि फर्स्ट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, सर या तो आर्टिकल में आप उनके, it is necessary that you should provide the name of the person who, hello sir, voice clear है? Yes, sir. Sir, manner of appointment of director, first is the section 152 subsection 2. Every director shall be appointed by the company in general meeting. What does it mean? Sir, I am not talking about the first director. The first director के बाद ये first director नहीं है. It is the subsequent director. First director that can be appointed by the article, या उसमें आप लोग manner बता दीजिए. लेकिन सर अब उसके बाद अगर मैं कोई subsequent director appoint करता हूँ, then the main important thing, every subsequent directors are appointed only in a journal meeting. 152(2). सर उसके बाद अगर आप किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे, that can be appointed only through the journal meeting. अब सर बच्चों यहाँ पे एक चीज जरा दिमाग में डाल के चलेगा, अगर आप फिजिकल सामने होते मैं आपसे क्वेश्चन पुट करता, मैक्सिमम बच्चे that are unaware कि भैया कंपनी का ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है, कंपनी का स्पेशल बिजनेस क्या होता है. अब इंटरव्यू के लिए हम लोग जाएंगे तो कई बच्चे तो ऐसे आपको मिलेंगे कि सर स्पेशल बिजनेस ऐसे होते हैं जो स्पेशल काइंड ऑफ स्पेशल नेचर के बिजनेस होते हैं. इवन दे कांट एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल बिजनेस. मैंने डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रहा था, तभी मेरे को ये चीज याद आया कि मैं इसको क्लियर करवा दूं. अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, approval of financial statement, profit and loss, balance sheet, these all are the ordinary business. One more, that is the declaration of profit. सर ये जितने भी प्रॉफिट को डिक्लेयर करना, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल लेना, बैलेंस शीट का अप्रूवल लेना, कैश फ्लो स्टेटमेंट का अप्रूवल लेना, these all are the part of the financial statement. डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, ऑडिटर को अपॉइंट करना, these all are the ordinary business. ये सारे के सारे ordinary. In the case of ordinary business, ordinary resolution must be passed by the company in general meeting. And what are the special business? So special business कोई special नहीं है. Every business except these. इन business के अलावा जितने भी business होंगे वो सारे के सारे स्पेशल बिजनेस माने जाएंगे. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे दिमाग में रखिएगा. तो हम लोगों को ये भी नहीं पता होता कई बार कि सर ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है, स्पेशल बिजनेस क्या है. तो इसलिए मैंने बताया कि चूंकि आप कंपनी के डायरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, इट इज द ऑर्डिनरी बिजनेस. इसको
ऑर्डिनरी बिजनेस की कैटेगरी में डालना चाहता है, और इस ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही पास करवाना है. First is the subsequent director. Every subsequent director shall be appointed by the company in the general meeting. However, where any provision contained in the act required to specify any other manner of appointment of director, the appointment may be made in such manner. So that is something contradictory to the first. पहले तो उसने बोला कि भैया जो भी उसके बाद डायरेक्टर्स आपके अपॉइंट होंगे वो कंपनी की जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट होंगे. सेकंड कहता है whoever where any provision contained in the act. अब हम लोग एक्ट के बारे में बात करें. अब अगर मान लीजिए एक्ट में मुझे कोई ऐसा प्रोविजन बताया गया है जो जनरल मीटिंग के कॉन्ट्राडिक्टरी है, मींस वो कहता है कि सर आपको जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं करना, एक्ट कहता है कि सर आप किसी भी बोर्ड मीटिंग के अंदर अपॉइंट कर सकते हैं. इन दैट सिचुएशन आई कैन अपॉइंट द डायरेक्टर एज पर सच डायरेक्शन इफ प्रोवाइडेड बाय द एक्ट, नॉट बाय एनी अदर. सर आपके आर्टिकल क्या कहते हैं उसका कोई लेना देना नहीं. आर्टिकल कहते हैं कि अगर जनरल मीटिंग में नहीं होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे. इट इज टोटली वाइट. आर्टिकल के पास पावर नहीं है. आर्टिकल के पास तो फर्स्ट डायरेक्टर के नाम दे रखे हैं, फर्स्ट डायरेक्टर का प्रोविजन दे रखे हैं. या आर्टिकल आपको प्रोविजन बता सकता है कि आपने डायरेक्टर कैसे अपॉइंट करने हैं, बट व्हाटएवर द अपॉइंटमेंट अकर दैट शुड बी इन द जनरल मीटिंग. तो इसने कहा कि वेयर एनी प्रोविजन कंटेन इन द एक्ट रिक्वायर एनी अदर स्पेसिफिक एक्ट, मींस अगर वो आपको स्पेसिफाइड करता है, एक्ट आपको कहता है, in that situation such appointment can be made according to such specific information or specific condition. Director identification number. अब सर अगर आपने पहले फर्स्ट लेक्चर में स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को अगर कंपनी के अंदर डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं तो उस व्यक्ति के पास डिन का होना अनिवार्य है. In the same manner 152 subsection 3 state DIN is mandatory for appointment as a director. DIN is mandatory, आपके लिए जरूरी है. Next, duty of director before appointment. Sir, what are the duty of director before his appointment? अब सर डायरेक्टर को आपने अपॉइंट करना है, उसकी ड्यूटी क्या है, व्हाट आर इज उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब सर जहां पे there are two main important criteria. The first is whether that person is eligible for appointment. क्या वो व्यक्ति डायरेक्टर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है. सेकंड, क्या वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट डेट को कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर रहा है. Therefore, it is the duty of such particular or proposed director to confirm whether he attacked any disqualification on the date of his appointment. सर अगर आप किसी भी व्यक्ति को डायरेक्टर प्रपोज करते हैं तो उस व्यक्ति को इस बात कंपनी को एश्योरेंस देना पड़ता है कि सर on the date of appointment I am not accepting any disqualification. अब सर डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन में मेरे पास बहुत सारी कंडीशंस है कि सर these are the condition which through which you are not eligible for director. Means अगर इनमें से कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होती है आपका ऑफिस इमीडिएटली उस पर्टिकुलर डेट को सीज हो जाएगा. अब कंपनी के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि कंपनी इस बात को वेरीफाई करे कि भाई इस व्यक्ति ने कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अब हम लोग कोई पुलिस वाला काम तो कर नहीं रहे. नो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी to confirm whether you attract disqualification on particular date. Then therefore the company act revert the situation by transferring this responsibility on the head of the proposed director. No, it is the responsibility of the proposed director to tell whether he attract any disqualification on the date of appointment or not. सर ये उसको बताना पड़ेगा कि वो उस पर्टिकुलर डेट को क्या किसी डिस्क्वालिफिकेशन को अट्रैक्ट करता है या नहीं करता.
एंड द मेन इंपॉर्टेंट, सर उसको दो मेन इंपॉर्टेंट चीजें बतानी पड़ेंगी कि मैं किसी डिस्क्वालिफिकेशन को अटैक नहीं करता, एंड एट द सेम टाइम ही शुड प्रोवाइड ए कंसेंट लेटर that he is interested to be a director in your company. That consent letter should be provided by such director to the company. अब पहली बात तो भैया उसको बताना पड़ेगा. And there is a एक दो केस आपके ऐसे आए थे, one person sent his consent letter to the company कि सर मैं आपकी कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट के लिए एलिजिबल, मैं आपकी कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हूं, मैं अपनी कंसेंट आपको भेज रहा हूं. लेकिन वो किसी डिस्क्वालिफिकेशन को अटैक करता है तो उसने उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की. लेटर ऑन इट इज डिस्कवर्ड इन द नॉलेज ऑफ द कंपनी दैट on the date of the appointment that person is not qualified. It means that person attract disqualification. No, that person is responsible for attract penalties. तो उस केस में उस व्यक्ति के लिए यह माना गया कि इसने जानबूझ के कंपनी को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी, क्योंकि अगर आप कंपनी को अपना कंसेंट लेटर प्रोवाइड कर रहे हैं, इट डायरेक्टली स्टेट दैट यू आर नॉट अटैक एनी डिस्क्वालिफिकेशन at the time of appointment. Next is the consent as to act as a director. I just told you the such proposed director shall given his consent to hold the office of the to hold the office as director, and consent has been filled with the RO sent to the ROC within 30 days of his appointment. Sir, पहली बात, it is responsibility of the proposed person to send his consent to the company. No, it is responsibility of the company to send the same consent to ROC within a period of 30 days of the appointment. अब सर अगर मैं किसी कंपनी में डायरेक्टरशिप के लिए अप्लाई करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कंपनी में एक लेटर, एक अनकंडीशनल लेटर देना पड़ेगा कि at this date I am not attract any disqualification, and as well as I am also have to provide my written consent that I am interested to be a director in your company. That is the two main important condition. That is, you are not attract any disqualification, as well as you provide your consent with the company, and in the same manner the company should transfer your consent letter to ROC within 30 days from the date of receiving the consent. Non-applicability. Section 152 subsection 5, that is the consent, where appointment of such director is done by the central government, state government, as the case may be, and such company has not committed any default in filing the financial statement. Now the question is, if any director, if a person is appointed as a director in a company and that person is not sending his consent to the company, which indicate that he is interested to continue to be a director, उसने कंपनी को अपना कोई भी कंसेंट लेटर नहीं भेजा, तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर क्या वो अपॉइंटमेंट वैलिड है? ऑर्डर हम लोग कहेंगे सर नहीं, ये तो वैलिड ही नहीं, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, क्योंकि उसको कंसेंट देना जरूरी है. But if that person is appointed by the central government or state government, अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि भैया ऐसा है कि आप लोगों की रिलायंस कंपनी में हेरा फेरी चल रही है, तो हम एक डायरेक्टर, एक व्यक्ति हम अपना भेज दें जो वहां पे डायरेक्टर का काम करेगा. In that situation, whatever the person appointed by the central government to act as a director, in that situation there is no need for such person for sending his consent again to the company, because that person is not himself appointed, that is appointed through central government or state government, that is appointed by central government or state government. तो सर जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे, उस जगह पे उस व्यक्ति को कोई भी कंसेंट देना जरूरी नहीं है. उस जगह पे खाली वो किसी डिस्क्वालिफिकेशन को अटैक नहीं कर रहा, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट, लेकिन एडिशनल आपको कोई भी कंसेंट देना जरूरी नहीं. नेक्स्ट, रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल डायरेक्टर, that is section 152 subsection 6 and subsection 7. कहते हैं कि सर what is the number of rotational?
अब देखिए सर, कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स हैं, उस टोटल डायरेक्टर्स का मैक्सिमम 1/3 से ज्यादा डायरेक्टर परमानेंट डायरेक्टर नहीं होते। मतलब ये वो डायरेक्टर्स हैं जिनके हार्ड कोर इंटरेस्ट कंपनी में है। अब ये कंपनी में कभी रिटायर नहीं होते, दीज आर द परमानेंट डायरेक्टर। लेकिन सर प्रोविजन है कि भैया कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स होंगे उसमें से कुछ डायरेक्टर ऐसे होंगे जो रोटेशनल डायरेक्टर होंगे, और कुछ डायरेक्टर ऐसे होंगे जो परमानेंट, दैट इज द नॉन रोटेशनल डायरेक्टर होंगे। तो सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि कंपनी में कितने डायरेक्टर परमानेंट है और कितने डायरेक्टर रोटेशनल और नॉन रोटेशनल है। फर्स्ट इज द रोटेशनल डायरेक्टर। Unless the article provided not less than 2/3 of the total number of directors shall be rotational director. First word is unless the article provided. वो कहता है कि सर अगर मान लीजिए आर्टिकल ने आपको रोटेशनल डायरेक्टर के बारे में नहीं बताया तो कम से कम 2/3 डायरेक्टर 2/3 of the total director, it should be rotational director. सर अगर आर्टिकल कहते हैं, आर्टिकल साइलेंट है, आर्टिकल कुछ नहीं कह रहे, तो हम कहते हैं जी ठीक है, आर्टिकल कुछ नहीं कह रहे, द मिनिमम रोटेशनल डायरेक्टर इट शुड बी मिनिमम 2/3। इसका मतलब है कि सर अगर टोटल डायरेक्टर नो है और आर्टिकल अगर रोटेशनल पर साइलेंट है तो कम से कम आपके 6 डायरेक्टर रोटेशनल डायरेक्टर हैं, नॉन परमानेंट डायरेक्टर हैं। इसका मतलब ये वो डायरेक्टर हैं जो हर साल रिटायर होंगे। अब क्या प्रोविजन है, दैट इज द मैटर, दैट इज डिस्कस्ड लेटर। अब फर्स्ट इज द सर आर्टिकल साइलेंट है, बट इफ आर्टिकल इज नॉट साइलेंट, अगर आर्टिकल साइलेंट नहीं है तो आर्टिकल में पावर है कि भैया जितने भी डायरेक्टर्स हैं, ऑल द डायरेक्टर्स कैन बी अ रोटेशनल डायरेक्टर। लेकिन अगर आर्टिकल कह देते हैं, अब मैं कहता हूं कि आर्टिकल का कहना जरूरी है। अब लॉ तो कहता है सर मिनिमम 2/3 डायरेक्टर तो रोटेशनल होने जरूरी है, 2/3 जो डायरेक्टर्स हैं वो रोटेशनल डायरेक्टर्स होंगे ही होंगे। तो हम कहते हैं ठीक है, आर्टिकल में डायरेक्टर के बारे में लिखने की जरूरत ही नहीं है, अल्टीमेटली सबको पता है कि भैया टोटल 9 में से आपके 6 डायरेक्टर आपके रोटेशनल हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि 2/3 से ज्यादा डायरेक्टर रोटेशन होने चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में इन दैट सिचुएशन वी हैव टू मेंशन दैट मोर देन 2/3 ऑफ द डायरेक्टर आर रोटेशनल डायरेक्टर। इट मींस आर्टिकल में मैक्सिमम सिचुएशन में, मैक्सिमम केसेस में 152(6) मींस इसके नंबर के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया जाता, तो मिनिमम 2/3 ऑटोमेटिकली रोटेशनल डायरेक्टर्स बन जाते हैं। लेकिन अगर कंपनी, इफ द कंपनी वांट्स टू अपॉइंट मोर पर्सन, more than 2/3 of the total number of director as the rotational director, in that situation only article should explain the number of director। तो आप जब भी आर्टिकल को देखेंगे, आर्टिकल में नंबर मेंशन है तो ऑब्वियस है आपके वो नंबर 2/3 से ज्यादा होंगे। द सेकंड कंडीशन इज द सेम जो मैंने अभी आपको रिपीट किया। However, the article of association of a company may provide that all the directors shall retire at every annual general meeting. It means all the directors shall retire. Retire कौन होगा भाई? जो भी रोटेशनल डायरेक्टर हैं। इट मींस आर्टिकल कह सकते हैं कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं, all directors should be a rotational director. इट मींस आर्टिकल साइलेंट है तो मिनिमम 2/3 उससे ज्यादा। लेकिन अगर आप ज्यादा रखना चाहते हैं तो अल्टीमेटली यू हैव टू मेंशन द नंबर ऑफ डायरेक्टर, बट दैट नंबर ऑफ डायरेक्टर, दैट नंबर शुड बी मोर देन 2/3। कहते सर अपॉइंटमेंट इन जनरल मीटिंग, कहते कि सर अब जो रोटेशनल डायरेक्टर्स हैं, अब रोटेशनल डायरेक्टर में क्या होगा, उनको आप कैसे अपॉइंट करेंगे? आपने कहा कि जो भी डायरेक्टर्स हैं वो जनरल मीटिंग में अपॉइंट होते हैं, तो अल्टीमेटली जो भी रोटेशनल डायरेक्टर्स हैं, अगर इनके बदले में किसी और व्यक्ति को आप डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं या इन्हीं व्यक्ति को डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं, द सेम अपॉइंटमेंट शुड बी अकर इन द जनरल मीटिंग। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर,
कहता है कि सर सेक्शन 152 सब सेक्शन 6, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड, total number of directors shall not include. अब सर the criteria is total number of director. अब आपने अभी पीछे पढ़ा कि सर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर मिनिमम तो आपके 2-3 एक है, मैक्सिमम 15 है. 15 से ज्यादा अपॉइंट करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन हम लोगों को पास करना पड़ेगा. लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है. अब वो हमें जो 15 नंबर कैलकुलेट करने हैं, that number is known as the total number of director. It means whenever we are calculating the total number of director, the following directors shall not be including for the calculation of total number of director. Means जब आप 15 की कैलकुलेशन करेंगे तो उस 15 की कैलकुलेशन में आपको ये टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कैलकुलेट नहीं करने. Here one and main important, 15 मैंने आपको वैसे प्रोविजन बताया कि भैया 15 जो मैक्सिमम डायरेक्टर्स हैं, अगर आपके मैक्सिमम डायरेक्टर्स 10 हैं, 8 हैं, 12 हैं, तो उस 10, 8, 12 की कैलकुलेशन के लिए इन डायरेक्टर्स को कंसीडर नहीं किया जाता. दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 152(6). फर्स्ट इज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ कंपनी, nominee director appointed by a financial institution, and nominee director appointed by the central government under section 408. It means in these three conditions, if any of the director appointed under these three conditions, that person should not be counted for the calculation of total number of directors. The first condition is independent director. Sir, company में जितने भी independent directors हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को हम इस कैलकुलेशन में टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते. नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द फाइनेंशियल कंपनी. नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर्स? अब इसमें भी बच्चे को कंफ्यूजन आ जाता है. सर अगर मान लीजिएगा कि कोई कंपनी है जो आप लोगों को कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है, तो वो कंपनी डेफिनेटली चाहेगी कि उसका पैसा सिक्योर रहे. इस चीज को कंफर्म करने के लिए कई बार कंपनी अपना कोई एम्प्लॉय आपकी कंपनी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर देती है. इट इज ऑलरेडी एग्रीड बिटवीन द फाइनेंशियल कंपनी एंड द कंपनी. मींस अगर मेरी कंपनी को लोन चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे सामने कंडीशन रखती है कि भैया ऐसा है कि हम आपको 50,000 करोड़ का लोन दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि भी हमारा पैसा सिक्योर है. तो हमारी कंपनी के सी है वो आपकी कंपनी में एज ए डायरेक्टर काम करेंगे कि आप इस पैसे को गलत तरीके से तो यूज नहीं कर रहे. इट मींस इन दैट सिचुएशन दैट पर्सन, दैट सीए ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया which is appointed as a director in our company, that is known as the nominee director of financial institutions. So 2 मिनट वेट कीजिएगा. हेलो सर, मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो Yes, sir. सर. सेक्शन 152 subsection 6, that is which person should not be included while calculating the total number of director. First is the independent director, second is the nominee director. अब देखिए दो मेन इंपॉर्टेंट सिचुएशन कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने से पहले they enter into agreement with you that some of their employees reappointed in your company as a director. That person work on the behalf of the original company, mother parent company. That person is known as a nominee director. In the same manner,
sometime under section 408 of the Companies Act, central government decide that their sum of employees appointed in this company as central government nominated director. अब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लगता है सर आपकी कंपनी हेराफेरी कर रही है, कोई चोर चकारी करने में लगी हुई है, आपकी कंपनी का ऑपरेशन ठीक नहीं चल रहा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी टाइप का शक है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी मींस उनको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है आपकी कंपनी के अंदर कि कोई दिक्कत है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है अंडर सेक्शन 408 कि वो आपकी कंपनी में किसी भी व्यक्ति को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। In this situation, these three persons can be appointed as a director in your company, but while calculating the total number or total strength of the director, these three personality should not be considered. So first is the independent director, second is the nominee director appointed by the financial institution, and third is the nominee director appointed by the central government. तो ये तीन लोग हैं जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के लिए कंसिडर नहीं किए जाते। नेक्स्ट इज द सर नॉन रोटेशनल डायरेक्टर, सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन बी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन रोटेशनल डायरेक्टर? लॉ कहता है कि सर एवरी डायरेक्टर हु इज नॉट अ रोटेशनल डायरेक्टर दैट इज नोन एज द नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। तो सर जो डायरेक्टर रोटेशनल डायरेक्टर की सिचुएशन में नहीं है या जो डायरेक्टर रोटेशनल डायरेक्टर नहीं है, दैट इज द नॉन रोटेशनल डायरेक्टर, दैट इज द परमानेंट डायरेक्टर। कहते हैं कि सर फर्स्ट इज द अपॉइंटमेंट। आप किसी भी डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की बात कीजिए, कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट होगा कहाँ पे होगा? एजीएम के अंदर होगा। फर्स्ट डायरेक्टर को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जो भी डायरेक्टर अपॉइंट होंगे वो सारे के सारे एजीएम में ही होंगे। हाँ, ये पॉसिबल है कि अगर फर्स्ट डायरेक्टर आपके आर्टिकल में मेंशन नहीं है लेकिन आर्टिकल में कह दिया जाता है कि भैया फर्स्ट डायरेक्टर को भी एजीएम में अपॉइंट कीजिए, इन दैट सिचुएशन टू फर्स्ट डायरेक्टर आर आल्सो अपॉइंटेड इन द एजीएम। लेकिन अगर हम फर्स्ट एजीएम को छोड़ दें, फर्स्ट डायरेक्टर को छोड़ दें, तो उसके बाद जितने भी डायरेक्टर्स हैं, वेदर इट इज अ रोटेशनल, वेदर इट इज अ नॉन रोटेशनल डायरेक्टर, all the directors are appointed in the general meeting. Okay, the number, so I got total, if the company article is silent about the rotational and non-rotational, the minimum number of rotational director, that is the 2/3. In the same manner, the minimum number of non-rotational director, that should be 1/3. अगर आर्टिकल कुछ कहेगा तो 1/3 से नीचे जाएंगे, लेकिन किसी भी सिचुएशन में वो 1/3 को क्रॉस नहीं करेंगे। What is condition? However, the company may provide in its article the manner of appointment of not more than 1/3 of the total number of director. And the manner of appointment, the company may provide in its article the manner of appointment of rotational director. For example, the article of a company may empower its board of director to appoint its rotational director. So number मैंने आपको बताया, not more than 1/3 of the total number of director, 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकते। Manner of appointment, अब सर अगर आपने नॉन रोटेशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, आर्टिकल में पावर है, आर्टिकल हैज द पावर टू डिसाइड। Therefore it say the company may provide in its article the manner of appointment of rotational director. Means कंपनी अपने आर्टिकल में रोटेशनल डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रोविजन प्रोवाइड कर सकती है। अब क्या प्रोविजन मेंटेन करें? अब कंपनी ये कहेगी कि सर जो भी हमारे नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। अब अपॉइंटमेंट तो सर कंपनी की एजीएम में होगा, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपकी बोर्ड मीटिंग में उनके नाम को रिकमेंड करेंगे, बट द फाइनल अप्रूवल रिगार्डिंग देयर अपॉइंटमेंट दैट शुड बी टेकन इन द कंपनी एजीएम। नेक्स्ट इज द रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर। अब सर जो भी आप लोगों के रोटेशनल डायरेक्टर्स
अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स? मैंने बताया कि सर कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो हर साल चेंज होंगे, कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो चेंज नहीं होंगे, दैट इज नोन एज अ नॉन रोटेशनल, दैट इज नोन एज अ परमानेंट डायरेक्टर। अब सर कंपनी में जितने भी रोटेशनल डायरेक्टर्स हैं, हमने कहा कि कंपनी में टोटल नंबर ऑफ 2/3, मिनिमम 2/3, 2/3 डायरेक्टर ऐसे हैं जैसे जो रोटेशनल है। इट मीन्स अगर मैं एक एग्जांपल लूं, इफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन ए कंपनी दैट इज इक्वल टू 9, then rotational director it should be minimum 6 and non-rotational director it should be minimum 3 अगर आर्टिकल साइलेंट है तो भैया रोटेशनल कितने हो गए 6 और नॉन रोटेशनल परमानेंट कितने हो गए 3। अब 3 को तो छोड़ दीजिए, अब रोटेशनल कितने हैं 6। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इन 6 में रिटायर कैसे होंगे? अब अल्टीमेटली द प्रोविजन इज 1/3 or nearest to 1/3 of rotational director are liable to retire by rotation. अब 6 में से 1/3 हर साल रिटायर होंगे रोटेशन पर, और हर साल इन 6 में से 1/3 इट मींस 2 लोगों के बदले में या तो आप इन्हीं को रीअपॉइंट करोगे या एनी अदर पर्सन कैन बी अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। लेकिन 1/3 मीन्स अगर मैं 2/3 रोटेशनल डायरेक्टर मान रहा हूं, 9 में से 2/3 दैट इज इक्वल टू 6, और उस 6 में से 1/3 दैट इज रिटायर बाय रोटेशन एवरी ईयर। However, the article of company may provide that all the directors shall be retire at every AGM. अब 1/3 that is the criteria. 1/3 if the articles are silent. सर आर्टिकल कुछ नहीं कहते तो हम कहते ठीक है, लॉ कहता है कि भैया 1/3 आपके हर साल रिटायर हो जाए। तो हमने कहा कि 6 रोटेशनल हैं, उन 6 में से 1/3 इट मींस 2 डायरेक्टर हर साल रिटायर करो और उनके बदले में दूसरों को अपॉइंट करो, या 2 डायरेक्टर को रिटायर करके उनको दोबारा से अपॉइंट कर दो, वट एवर द प्रोविजन में भी। अब अगर मान लीजिए आर्टिकल आपके इसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता है, देन आर्टिकल हैज पावर टू अपॉइंट मोर देन 1/3। मतलब अगर आर्टिकल 1/3 से ज्यादा कहता है कि सारे के सारे डायरेक्टर को रिटायर करना है, इन दैट सिचुएशन ऑल द डायरेक्टर्स आर टू बी रिटायर इन दैट एजीएम, और उनके बदले में आप दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे या उन्हीं को दोबारा से रीअपॉइंट करेंगे। देन द प्रोविजन इज 1/3 if there is a not any other information given in the article। लेकिन अगर आर्टिकल में इंफॉर्मेशन गिवन है कि भैया सारे के सारे आप लोगों के रोटेशनल है, तो उस केस में सारे के सारे डायरेक्टर्स आपके रिटायर होंगे। एंड 1/3 और नियरेस्ट टू 1/3, तो इसमें से अगर मान लीजिए 10 है तो उसमें हम लोग ऑलरेडी डिसाइड कर देते हैं कि भैया हम ऐसे डायरेक्टर जो 3 से नीचे नहीं जाना चाहिए, द नियरेस्ट टू 1/3 दैट पर्सन दैट डायरेक्टर शुड बी रिटायर बाय रोटेशन। कहते कि सर हु शैल बी रिटायर, अब पहले कौन सा रिटायर होगा? अब पहले बेसिकली तो सिंपल प्रोविजन है कि सर जो भी अपने ऑफिस में लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए होगा दैट पर्सन शुड बी रिटायर फर्स्ट। अगर मान लीजिए सीनियरिटी बेसिस पे है, एक आपका डायरेक्टर 2 साल से है, एक डायरेक्टर आपका 1.5 साल से है, एक आपका डायरेक्टर 1 साल से है, एक आपका 3 साल से है, तो जिसका लॉन्गेस्ट पीरियड होगा दैट पर्सन शुड बी रिटायर फर्स्ट, वो पहले रिटायर होगा। सेकंड, अगर मान लीजिएगा कहता है कि 2 डायरेक्टर्स हैं, 2 डायरेक्टर्स आपके दोनों के दोनों एक ही दिन अपॉइंट थे और उन दोनों का पीरियड इक्विवेलेंट है, इन दैट सिचुएशन या तो वो आपस में कंसेंट करेंगे या उस केस में एजीएम में डिसाइड किया जाएगा मोड कि इन दोनों में से कौन सा डायरेक्टर पहले रिटायर होगा। लेकिन फर्स्ट एंड मेन इंपॉर्टेंट, longest office period. Second is the same day appointment. In case 2 or more directors are appointed on the same day, the names of director liable to retire shall be determined as per any agreement between them. मैंने अभी आपको बताया कि दोनों आदमी एक ही डेट को अगर अपॉइंट हुए तो फर्स्ट मैटर हम उन दोनों को दे देंगे कि भैया आप आपस में डिसाइड कर लीजिए कि who shall retire at first and second by lots. By lots का मतलब होता है कि सर कंपनी डिसाइड करेगी, दोनों के नाम की पर्चियां डाल दी जाएंगी या दोनों में से किसी एक का नाम सेलेक्ट करके उसे बता दिया जाएगा कि सर नो यू आर रिटायर फर्स्ट। तो आपके पास 2 प्रोविजन है,
सेकंड कहता है कि सर अ वैकेंसी इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। अब कहता है कि सर आप डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स जो रिटायर हुए, अब हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट इज न्यू पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। पहला तो ये है कि किसी व्यक्ति को किसी और व्यक्ति को अपॉइंट कर दीजिए। एंड सेकंड एंड इंपॉर्टेंट कि सर अगर मान लीजिए कि कोई नया व्यक्ति अपॉइंट नहीं हो पाता, देन हमारे पास पावर है कि जो रिटायरिंग डायरेक्टर है दैट पर्सन कैन बी रीअपॉइंटेड अगेन। आप उन्हीं को दोबारा से रीअपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन सर इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो सर मैं तो आपको सुन नहीं पा रहा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। आप एक ग्रुप बना लीजिए व्हाट्सएप, उसमें सब सर बना लिया है सर। सर बना लिया तो सर उसमें मेरे को भी आप इंक्लूड कर दीजिए। कर लिया सर, ऐड आपको कर लिया। आपने कर दिया सर, मेरे को ऐड कर दिया। जी सर, जी सर। ठीक है सर, तो मैं बच्चों आज आपको नोट्स आपको ये सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपकी कोई भी क्वारीज है मुझे व्हाट्सएप पे आप क्वारीज सेंड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे ख्याल से मेरा आपसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। आप क्वारीज मेरे को सेंड कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं सबसे पहले आपकी क्वारीज सॉल्व करूंगा। उसके सर बाद अपना फिर नंबर तो दे दीजिएगा आप। हाँ नंबर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए सर। 98 मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, 98 9899 98 9899 26 25 03। थैंक यू। Repeat it, sir. 9899 262503। सर जितने भी बच्चे हैं सब व्हाट्सएप में ऐड हो जाइए। आपके जितने भी टीचर्स हैं वो आपको नोट सेंड करेंगे। लेकिन अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होगा, वी आर अनेबल टू सेंड द नोट्स, तो बेटर यही है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें से एक दो आप लोग मतलब जो एनरोल करते हैं एनरोल कर लीजिए। और उस व्हाट्सएप ग्रुप को एक अननेसेसरी चैटिंग ग्रुप मत बना दीजिएगा। सुबह उठते गुड मॉर्निंग, रात को सोते टाइम गुड नाइट। उसमें जो आप लोगों का मेन मैटर है खाली आप उसे डिस्कस कीजिएगा। उससे क्या होगा, अगर अननेसेसरी मैसेज डालेंगे तो हो सकता है कि बच्चे वहां से विड्रॉ कर लें या उनको पढ़े ही ना। तो इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप बना के आपके टीचर आपको उसमें कम्युनिकेट करेंगे। अननेसेसरी अगर आपके पास नॉलेजेबल चीज है जो मुझे नहीं पता, टीचर को बताना चाहते हैं, आप उसमें से पोस्ट कर दीजिए। लेकिन अननेसेसरी मैटर्स को आप उसमें पोस्ट मत कीजिए। सर नेक्स्ट क्लास के लिए थैंक्स जितने बच्चों ने अटेंड किया। सर कोई दिक्कत है तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक्स बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू सर।